children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, microorganisms. Learning objectives, habitat of microorganisms, types of microorganisms, useful microorganisms, harmful microorganisms, food preservation, nitrogen fixation and nitrogen cycle. The word microorganism is derived from two Greek words, micros meaning a small and organism meaning organisms. There are millions of microscopic organisms living all around us. They can be found in soil, in water, in air and even in our bodies. These living organisms which cannot be seen with the naked eye are called microorganisms or microbes. They can only be seen through a microscope. The study of microorganism is called microbiology and the scientists dealing with it are called microbiologists. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये आपके हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इवन हमारी बॉडीज़ में या बॉडी के अंदर भी। तो अब ये देखिए, जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड जो साइंटिस्ट डील करते हैं स्टडी में उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। Habitat of microorganisms. Microorganisms are present everywhere around us. They are present in air, soil, water, food, sewage, wastage, etc. They also occur in dead and decomposed organic matter. Some microorganisms are parasites microorganisms that live on other living organisms. They can survive and exist in harsh temperatures as well. If microorganisms face some unfavorable conditions, they form a hard outer covering called cyst. When the unfavorable conditions are over, they break open their cyst and come out. These microorganisms may be found living singularly or in colonies. Microorganisms may be unicellular like bacteria and protozoa or multicellular such as algae and fungi. अब देखिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहाँ है? ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे आपको बताया, एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, फूड, सिवेज, वेस्ट, आपका हर जगह। ये आपके डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी होते हैं। कुछ तो आपके पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो हार्श टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई अनफेवरेबल कंडीशन फेस करते हैं तो एक सिस्ट बना लेते हैं, एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं, जैसे सिस्ट कहते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस ओवर हो जाती हैं तो ये सिस्ट को ब्रेक करते हैं और उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं। कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर है, यानी जो सिंगल सेल से बने, जैसे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। कुछ मल्टीसेलुलर है जैसे कि एल्गी एंड फंगी। Activity 1. Microorganisms in the soil. Take some moist soil in a beaker and add a little water. Stir the content thoroughly. Filter it through a filter paper. You will get fairly clean water. Put one drop of this filtered water on a clean glass slide and examine under a microscope. You will see small organism floating in it. This activity shows that soil contains microorganism. आपको moist soil लेनी है बीकर में, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, स्टर करना है कंटेंट को एंड उसके बाद फिल्टर कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि फिल्टर पेपर में आपका मिट्टी आ जाएगी और नीचे आपका क्लीन वाटर आ जाएगा। अब आपको एक ड्रॉप लेना है इस फिल्टर्ड वाटर का क्लीन ग्लास स्लाइड में और माइक्रोस्कोप के अंडर आप इसे एग्जामाइन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. There are far more microorganisms than visible organisms in our world. Some of these are useful and beneficial to us, while some can cause harm and damage. There are 4 broad categories of microorganisms. These are the 4 categories. Do you know there is a 5th category of microscopic organisms called viruses? They are non-living but attack other organisms and replicate inside their body. The common cold is caused by a virus. देखिए 4 कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी। 5th कैटेगरी है वायरसेस की। ये आपके नॉन लिविंग होते हैं बट ये जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं तो उनकी बॉडी में रेप्लिकेट होते हैं। जैसे आपका कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरस की ही वजह से ही होता है। Bacteria, singular bacterium. Bacteria are single-celled or unicellular organism having a cell wall but no other organized structure or nucleus. They are found almost everywhere, in the air, in water, in soil, in food products, and also in the bodies of other living organisms. Bacteria reproduce by binary fission when conditions are favorable. Some bacteria produce endospore during unfavorable condition. Their size may vary from 0.2 to 2 micron. Some common examples of bacteria are E. coli, lactobacillus and rhizobium bacteria.
Some bacteria are useful while some bacteria are harmful and cause disease in both plants and animals. For example, bacteria cause cholera and tuberculosis in humans while they cause diseases like citrus canker, leaf blight of wheat in plants, etc. बैक्टीरिया आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल वॉल है तो कोई इनका जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, ये हर जगह आपके पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो आपके बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। इनका साइज देखिए वेरी करता है 0.2 से तो 2 माइक्रोन। कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं जबकि कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जिनकी वजह से जैसे प्लांट्स या एनिमल्स में बीमारियां भी लगती हैं, जैसे कि कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है ह्यूमन में। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि सिट्रस कैंकर या लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। Fungi, singular fungus. Fungi are plant-like organisms that do not contain chlorophyll. They may be unicellular as well as multicellular. The cotton-like threads present in the bodies of fungi are called mycelium. Each single thread is called a hypha. They require dark, warm and moist places to grow and are found growing on moist bread, leather goods, rotting fruits and vegetables or animal excreta. They also grow on or inside the bodies of living plants and animals. Most fungi are saprophytes that grow on dead and remains of plants and animals. Some of them lead to symbiotic life as in lichens. Some of them are parasites. They feed on living things and cause diseases. Some fungi like yeast and mushroom are useful and widely used in food industry, while some fungi can cause diseases like ringworm and athlete's foot. Fungi आपका plant like organism होता है जिसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता है। ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब देखिए इनके एक्चुअली इनमें कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं जिनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है माइसीलियम, और हर सिंगल थ्रेड को कहा जाता है हाइफा। इनको डार्क, वार्म और मॉइस्ट प्लेस चाहिए होता है जिसमें ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आपका मॉइस्ट ब्रेड है या लेदर गुड या रॉटिंग आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल है, राइट। ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी ग्रो करते हैं। आपके ज़्यादातर जो फंगी होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक लाइफ लीड करते हैं, जैसे कि लाइकन के केस में है। कुछ इनमें से पैरासाइट्स होते हैं, राइट। तो कुछ फंगी है जैसे कि यीस्ट एंड मशरूम की अगर हम बात करें तो ये यूजफुल है, फूड इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है, जबकि कुछ फंगी की वजह से डिसीज होती हैं लाइक रिंग वर्म एंड एथलीट्स फूट। Activity 2. Bread mold growing on a bread. Moisten a slice of bread and place it on a plate in a warm place. Carefully observe the change on the slice after a couple of days. You will find green, grey, fluffy growth on it. This is bread mold. Examine the mycelium under a microscope. You can also observe hypha on them. आप एक ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्चर कीजिए और एक प्लेट में किसी वार्म प्लेस पे रख दीजिए। कुछ दिनों के बाद नोटिस करेंगे तो उसमें आपको ग्रीन, ग्रे, फ्लफी ग्रोथ नजर आएगी। तो ये आपका ब्रेड मोल्ड है। Algae, singular alga. Algae are called the grass of water because they remain floating on the surface of the stagnant water. They are mostly found in water bodies such as ponds, lakes, rivers, hot springs and seas. They may be unicellular or multicellular. Like plants, algae can make their own food by the photosynthesis because they contain chlorophyll. Due to the presence of chlorophyll, algae are generally green in color. Algae may be unicellular or multicellular, filamentous or branched. They may be green, red or brown in color depending upon the pigment they contain. अब एल्गी को ग्रास ऑफ वाटर कहा जाता है क्योंकि ये स्टेगनेंट वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ये ज़्यादातर आपके वाटर बॉडीज़ में ही पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में। ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब बिकॉज एल्गे आपके ग्रीन इन कलर होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ओके अब ये जनरली वैसे आपके ग्रीन ही होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। आपके एल्गे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं। ग्रीन के अलावा ये रेड, ब्राउन में भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट है। Protozoa, singular protozoan. Protozoa are a group of unicellular organisms. The word protozoa means a small animal. Like animals, they move and capture food and are heterotrophic in nature as they obtain nutrition from other organisms. They move with the help of pseudopodia, flagella or cilia. Protozoa mostly reproduce asexually by budding, binary fission or spore formation.
These are all different shapes and sizes. They are mostly found in ponds, lakes, dirty water drains, river, sea, water and moist soil. In the bodies of animals including man, as parasites, they have a saprophytic or parasitic mode of nutrition. प्रोटोजोआ देखिए आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इस वर्ड का ही मतलब होता है प्रोटोजोआ का कि स्मॉल एनिमल. ये एनिमल की तरह मूव करते हैं, अपना खाना कैप्चर करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड से. ओके, ये सूडोपोडिया की हेल्प से या फ्लैगिला या सीलिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं. अब आपका जो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग या बाइनरी फिशन या स्पोर फॉर्मेशन में. इनके डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होते हैं. ये आपके लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर, सी हर जगह आपके पाए जाते हैं. यहाँ तक कि एनिमल्स की बॉडी में भी इंक्लूडिंग मैन एज पैरासाइट. इनका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. देखिए आपके कुछ एग्जांपल्स हैं. अमीबा, यूग्लिन एंड पैरामीशियम में आपके प्रोटोजोआ हैं. वायरसेस, सिंगुलर वायरस. Viruses are the smallest microorganisms. They can be seen only with a special microscope, the electron microscope. They lack any particular cell structure. They are unique because they can reproduce only inside the bodies of other organisms, which are called host organisms. Outside of the host, viruses do not behave like living things. They do not feed, respire, excrete, grow or multiply. But as soon as a virus enters the host, it starts reproducing using the energy of the host cell. Therefore, viruses are considered a link between the living and non-living. All known viruses cause disease in plants and animals. In human beings, common cold, influenza, hepatitis, rabies, polio, and AIDS are some common diseases caused by viruses. वायरसेस आपके सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनको एक स्पेशल माइक्रोस्कोप जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. इनका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है. इनकी ये बड़े यूनिक होते हैं. ये क्या करते हैं कि जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी होस्ट बॉडी में जाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं. होस्ट बॉडी के आउटसाइड वायरस जो है वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं. ना तो ये फीड करते हैं, ना रेस्पायर करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना मल्टीप्लाई. लेकिन जैसे ही वायरस एंटर करता है होस्ट में, ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एंड होस्ट सेल की एनर्जी को यूज़ करता है. इसीलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है. आपके जितने भी जो वायरसेस हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में हैं, ये डिसीज़ आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स में कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स में देखिए ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये सारी आपकी वायरसेस की वजह से होती हैं. Useful microorganisms. Many of the microorganisms found around us are beneficial to us and we use them in many ways across different industries. Let us see some of the ways in which microorganisms are used. अब देखिए कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं. चलिए देखते हैं. Microorganisms in food processing and production. Milk is converted into curd or cheese with the help of microorganisms. The bacteria Lactobacillus is used to convert milk into curd. Other types of bacteria and fungi are used in the production of cheese. Bread and other bakery products are made with the help of a fungus called yeast. The yeast multiplies rapidly and produces carbon dioxide during respiration, which gets trapped in the dough, making it fluffy. Food items such as idli, dosa, and dokla are also prepared by the action of yeast and bacteria. Yeast is added to the mixture of ground rice and dal, and it is allowed to stand for a few hours. This mixture rises and becomes sour due to the growth of yeast cells. देखिए मिल्क जो आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है या चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही होता है. आपका एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस ये मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, और अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फंगी जो है इनको चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. ब्रेड या जो दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं इसमें एक फंगस डलता है जिसको कहते हैं यीस्ट. यीस्ट जो है मल्टीप्लाई होता है रैपिडली एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान, जो कि डो के अंदर आपका ट्रैप हो जाता है जिससे फ्लफी बनता है. जैसे आपका इडली, डोसा, ढोकला ये आपकी मम्मी बनाती होंगी, तो ये किसकी वजह से बनता है? एक्शन ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया की वजह से. यीस्ट को ऐड किया जाता है ग्राउंड राइस और दाल में, देन उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है. मिक्सचर इसके बाद राइस होता है, थोड़ा सा सावर हो जाता है क्योंकि उसमें यीस्ट सेल की ग्रोथ हो जाती है. Certain bacteria living in the intestine of herbivorous animals like cows, buffaloes, etc. produce enzymes which act upon cellulose and help in its digestion. कुछ बैक्टीरिया जो आपके herbivorous animals के intestine में रहते हैं, like cows and buffaloes के, तो वो enzymes produce करते हैं cellulose के ऊपर and फिर digestion में help करते हैं. Activity: prepare a dough by mixing wheat flour, water, sugar and yeast. Keep it in a bowl and cover the bowl with a lid. Keep it in a warm place for 3 hours. Note the level of dough in the vessel after 3 to 4 hours. You will notice an increase in the volume of the dough. The increase in the volume is because of the release of carbon dioxide gas by the yeast.
अब आपको एक डो प्रिपेयर करना है जिसमें आपको आटा डालना है, वाटर है, शुगर और यीस्ट भी डालना है। उसको आप डो करेंगे और वार्म प्लेस पे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अब जब 3 से 4 घंटे के बाद देखेंगे डो का जो लेवल है ना वो राइज हो जाएगा और डो का जो वॉल्यूम है वो भी राइज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें डाला गया था यीस्ट। ओके, तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। Commercial use of microorganism. Fermentation. Commercial products such as wine, alcohol and acetic acid vinegar are made with the help of microorganisms. Yeast ferments sugar present in grapes or in grains such as barley and wheat to produce alcohol. This process of microorganisms converting sugars into alcohol is called fermentation. Fermentation properties of several fungi are utilized for the manufacture of acetic acid, oxalic acid, citric acid, etc. अब देखिए जैसे आपके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आपका वाइन है, अल्कोहल है या एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं विनेगर यानी सिरका, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनता है। यीस्ट जो है फर्मेंट करता है शुगर को जो आपके ग्रेप्स में होता है या ग्रेन्स में होता है जैसे बार्ली एंड व्हीट में, जिससे कि अल्कोहल बनता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें शुगर आपकी कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो ये फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत सारे फंगी की, उसको यूटिलाइज की जाती है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन मेडिसिन्स. Antibiotics. Antibiotics are medicines that are prescribed to kill any microbial infections present in the body. They are made with the help of microorganisms. For example, the antibiotic penicillin is made from the fungus Penicillium. Many well-known antibiotics such as streptomycin, tetracycline and erythromycin are made from fungi and bacteria. They are also used to control plant and animal diseases. These are mixed with food of cattle and poultry birds to prevent them from infection. These are also sprayed with pesticides and insecticides to prevent infection in crop. Antibiotics are effective against diseases caused by bacteria, fungi and protozoa. एंटीबायोटिक्स आपकी मेडिसिन होती हैं जो कि किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की, तो ये बना है आपके एक फंगस पेनिसिलियम से। बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि ये देखिए आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आपके फंगी और बैक्टीरिया से बने गए हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट या एनिमल में जो डिसीज़ होती हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। इनको मिक्स किया जाता है कैटल के फूड के साथ या पोल्ट्री बर्ड के फूड के साथ, जिससे कि उनमें इन्फेक्शन नहीं होता। इसके अलावा इनको स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के साथ, जिससे कि क्रॉप में कोई इन्फेक्शन ना हो। Vaccines. Our body tries to fight off infections by producing antibodies. Vaccines are medicines made with weak microorganisms. When injected, vaccines stimulate the production of antibodies in our body. Our body then retains these antibodies for the future and protects us against disease. They are usually administered at injections or drops. Common vaccines include polio drops, the chickenpox vaccine, the measles vaccine, and the diphtheria and hepatitis vaccines. देखिए हमारी बॉडी क्या करती है कि फाइट ऑफ करती है इन्फेक्शन के साथ, कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो वैक्सीन्स आपकी वो मेडिसिन होती हैं जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी होती है। तो ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, राइट, या तो ड्रॉप्स के थ्रू या फिर इंजेक्शंस के थ्रू। तो कुछ आपकी कॉमन वैक्सीन्स है, लाइक आपकी पोलियो ड्रॉप्स है, ये सारी आपकी वैक्सीन्स है। Do you know Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798? In 1929, Alexander Fleming had developed the vaccine for anthrax, a disease common in human beings and cattle. एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन डिस्कवर की थी सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में, एंड 1921 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक वैक्सीन डेवलप किया था एंथ्रैक्स के लिए। ये डिसीज कॉमन थी ह्यूमन बींग्स और कैटल्स में। Microorganisms used in cleaning the environment. Decomposition of organic matter such as dead plants and animals, food waste, and humans and animals' feces occurs due to the action of microorganisms, mainly bacteria and fungi of different types. If these organisms did not exist, all our waste would just remain on earth instead of being decomposed and reused as nutrients. Bacteria are also used for decomposition of sewage and production of biogas. They help in sewage disposal by putrefaction of dead organic matter. Bacteria clean up the environment by decomposing the waste material. They act on dead bodies of plants and animals and convert various complex organic compounds into simple inorganic substances. Thus, bacteria help in recycling. अब देखिए बैक्टीरिया जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं या फूड वेस्ट होते हैं या एनिमल या ह्यूमन का फेकस होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो मेनली आपका जो बैक्टीरिया या फंगी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो एक काम करते हैं।
तो ये ऑर्गेनिज्म अगर नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा जो वेस्ट है वो अर्थ में ऐसे ही पड़ा रहेगा, राइट। बैक्टीरिया इसके अलावा सुवेज एंड के डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग द वेस्ट मटीरियल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Nitrogen is an essential element required for plant growth. However, plants cannot absorb nitrogen from the atmosphere. They need to take nitrogen from the soil using their roots. Microorganisms such as blue-green algae and nitrogen-fixing bacteria such as Rhizobium have all the ability to take the nitrogen from the atmosphere and fix it in the soil, thereby improving soil fertility. They are commonly found in a symbiotic relationship growing in the roots of leguminous plants. Fungi decompose the dead bodies of plants and animals and their waste products obtained after decomposition then escape into the air and the soil. The soil thus is enriched with humus and becomes fertile. Bacteria present in the soil increase fertility of the soil. अब देखिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें या फिर राइजोबियम की, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है इसको सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि ये लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ग्रो करते हैं। फंगी जो है प्लांट से एनिमल्स की डेड बॉडी को और उनके वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन के बाद होते हैं वो एयर में स्केप हो जाते हैं या सॉइल में। इससे क्या होता है कि सॉइल में आपका ह्यूमस एड ऑन हो जाता है। बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। Harmful microorganisms. While some microorganisms are beneficial to us and are used to produce many useful items like food and medicines, there are other microorganisms that can be very harmful to us, plants and animals. These harmful microorganisms cause diseases which spread very easily. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा हमने कि बेनिफिशियल हैं, बट कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होते, उल्टा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। तो इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैथोजेंस, जिनकी वजह से हमें बीमारियां लगती हैं। In humans, these pathogens cause communicable diseases. Communicable diseases are the diseases which can be transmitted from an infected person to a healthy person. Any type of discharge from an infected person through eyes, nose, mouth, wastes, etc. carries pathogens. When a healthy person comes in contact with these pathogens, she also gets infected. Human can contract microbial disease through air, water, food, or through physical contact with an infected person. Houseflies and mosquitoes are examples of carriers of diseases. अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ये कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलाते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे फैलती है, राइट। अब देखिए किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, चाहे थ्रू नोज, आइज, माउथ, ये पैथोजेंस कैरी करते हैं। अब जो हेल्दी पर्सन जो है इन पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, राइट। तो जैसे हाउस फ्लाइज एंड मस्कीटोज ये आपके कॉमन करियर्स हैं आपके डिसीज़ के। Tuberculosis caused by bacteria and measles caused by virus spread very easily through air. To prevent further spread of these diseases, the patient must be isolated from others. आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, मीजल्स जो वायरस की वजह से होते हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है हवा के थ्रू। इसीलिए अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको दूसरों से आइसोलेट कर देना चाहिए। Cholera and typhoid are caused by bacteria. These diseases spread through contaminated water. To keep these diseases from spreading, we should drink boiled water and eat food that is clean and cooked properly. Diseases such as chickenpox spread through contact with an infected person. To prevent these diseases from spreading, the patient must be isolated from others until the infection is treated. Most microbial diseases that spread through water can also spread through infected food. When food is left outside for a long time, microorganisms can grow it. When this infected food is consumed, it can cause food poisoning. अब देखिए आपकी कॉलेरा एंड टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आपके कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। तो आपको हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और जो आपका खाना है वो भी आपका प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। चिकन पॉक्स जो है आपका ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इस बीमारी को स्प्रेड करने के लिए पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए जब तक कि इन्फेक्शन ट्रीट ना हो जाए। ज़्यादातर माइक्रोबियल डिसीज़ जो होती हैं वो आपके वाटर से फैलती हैं या फिर आपके इन्फेक्टेड फूड से फैलती हैं। तो जैसे आपने खाने को लंबे समय तक बाहर छोड़ दिया तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और अगर आपने इस इन्फेक्टेड फूड को खा लिया देन बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं। Some common diseases in human beings.
हियर इज अ टेबल गिवन टू यू. देखिए यहाँ पे डिसीज के नेम है, किस पैथोजन की वजह से होता है, कौन सा कैरियर होता है एंड किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है, ये सब आपको इस टेबल में गिवन है. In plants and animals also get infected by disease-causing microorganisms. To prevent the further spread of the disease, the infected plant or animals needs to be separated from the healthy ones. The viruses cause foot and mouth disease in cattle. They can spread very easily and cause death. अब जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में डिसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होती है, राइट? तो इन्फेक्टेड प्लांट और एनिमल को सेपरेट कर देना चाहिए हेल्दी वन से. वायरसेस की वजह से फुट और माउथ डिसीज़ हो जाती है कैटल में, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है जिससे डेथ हो जाती है. तो देखिए यहाँ पे कुछ एक टेबल दी गई है, ये कॉमन डिसीजेस दी गई हैं जो एनिमल्स में हैं, कौन से एनिमल्स अफेक्ट होते हैं एंड कौन से पैथोजन की वजह से होते हैं. Some common microbial plant diseases such as rusting of wheat and yellow vein mosaic affect crops and cause a lot of damage to farmers. Diseases reduce the yield of crops. They can be controlled by use of certain chemicals. अब जैसे कुछ microbial डिसीज़ हो जाती है प्लांट्स में, जैसे कि हम रस्टिंग ऑफ व्हीट की बात करें या येलो वेन मोज़ेक की बात करें, ये क्रॉप को अफेक्ट करती है, ठीक है, और फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इससे. और इन बीमारियों से क्या होती है, क्रॉप की यील्ड भी रिड्यूस हो जाती है. तो इनको हम कुछ सर्टेन केमिकल्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं. सम कॉमन डिसीजेज इन प्लांट्स. अगेन आपको एक टेबल दी गई है, ये कॉमन डिसीज है जो प्लांट्स में होती है, ठीक है. इनसे कौन से प्लांट होते हैं, जैसे स्मट डिजीज की बात करें, इनसे इन्फेक्टेड प्लांट मेज, बार्ली, व्हीट, ओट्स एंड शुगरकेन. एंड पैथोजन कौन है, फंगी, ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड सीड्स एंड इंसेक्ट्स. तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपकी प्लांट्स में होती हैं. Food spoiling microorganisms. Food gets spoiled due to the action of microorganisms such as bacteria and fungi. Microorganisms, on getting favorable conditions, grow on food items and multiply. They produce toxic substances. These toxic substances make the food poisonous and unfit for eating. अब देखिए फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन की वजह से ख़राब हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी की वजह से. तो जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये फूड आइटम्स में ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है फूड को पॉइजनस बनाते हैं और ये अनफिट हो जाता है ईटिंग के लिए. तो वेरियस फैक्टर्स विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फूड आइटम्स आर वार्म टेम्परेचर, presence of moisture in food item or the atmosphere, nutrients present in food items, acidic or basic nature of the food item. Some microorganisms grow well in acids while some grow well in bases. तो देखिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. एक आपका है एसिडिक और बेसिक. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एसिड में अच्छे से ग्रो करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बेस में अच्छे से ग्रो करते हैं. Food preservation. Food can easily be spoiled by microorganisms and cause harmful diseases such as food poisoning. Hence, it is very important for us to store food in such a way that it prevents the growth of harmful microorganisms. Food preservation refers to the techniques applied to food to prevent spoilage. अब देखिए food preservation के मेथड से हम खाने को लंबे समय तक उसको फ्रेश रख सकते हैं, लंबे समय तक उसे हम चला सकते हैं. तो पहले बात करते हैं केमिकल मेथड. Substances called preservatives are added to food to prevent them from getting spoiled. Many store bought food items such as jams and sauces contain these chemical preservatives. आप देखिए जैसे आपके कुछ जैम्स या सॉसेस आप खरीदते हैं तो उनमें कुछ प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं. ये आपके सब्सटेंस है जो खाने को खराब नहीं होने देते हैं. Adding sugar or salt. Many food items are salted and dried in the sun as a way of preservation. For example, dried mango, meat or fish are salted and dried. Fruits can be preserved by cooking them with a lot of sugar like in jams and relishes. बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें अगर आप सॉल्ट मिला देते हैं और सन में ड्राई कर देते हैं तो इस तरह से वो प्रिजर्व हो जाते हैं, जैसे कि ड्राई मैंगो है, फिश या मीट है. फ्रूट्स को भी प्रिजर्व किया जा सकता है अगर आप उनको बहुत सारी शुगर में आप उनको क्या करें, कुक करें, जैसे कि जैम्स या रेलिश या जेलीज आपकी जो बनती हैं. Adding oil or vinegar. Pickles contain a lot of oil which prevents microbial growth. Hence, pickles can be eaten over a long period of time. The addition of vinegar also has a similar effect as microorganisms cannot grow in such an acidic environment. Mango pickle preserved in oil. Temperature treatment such as heating or cooling food items can also help prevent spoilage. For example, milk is boiled before storing it since boiling kills all the microorganisms present in it. Similarly, food stored in the refrigerator at cool temperatures does not spoil for a long time. Some food items can be packed in airtight containers so that they remain fit for consumption for a long time. देखिए पिकलिंग एक मेथड है, उसमें क्या किया जाता है, जब अचार बनाया जाता है उसमें ऑयल और विनेगर को ऐड कर दिया जाता है,
ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, पिकल में बहुत सारा ऑयल होता है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, और इसीलिए जो अचार है आपका उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो अगर हम विनेगर ऐड करते हैं उसका भी सिमिलर इफेक्ट होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाते क्योंकि वो एसिडिक होता है आपका। टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, जैसे कि हीट कर दो या किसी चीज़ को आप कूल कर दें, जैसे कि मिल्क को बॉईल किया जाता है और उसके बाद उसको आप जैसे स्टोर करके रख देते हैं, राइट। इसी तरह से फूड को भी रेफ्रिजरेटर में हम कूल टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। Advantages of food preservation. Food preservation has the following advantages. It prevents the food from getting spoiled by the action of microorganisms. It increases the storage period, shelf life of perishable food material. It helps in the availability of off-season foods. It ensures the availability of perishable food material even at distant places. इसके देखिए फूड प्रिजर्वेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये खाने को ख़राब नहीं होने देता है। दूसरा, स्टोरेज पीरियड यानी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है फूड मटेरियल की। इसके अलावा ऑफ सीजन में भी वो आपको सामान मिल जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा कोई जो पेरिशेबल फूड जो खाना आपका जल्दी ख़राब हो जाता है वो डिस्टेंट प्लेसेस पे ख़राब नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस प्लेस पे जाया जाएगा तो उसको टाइम लग जाता है, तो अगर उसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन. The process of converting atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites for use by plants is called nitrogen fixation. This nitrogen fixation is carried out by some microorganisms. These microorganisms which fix nitrogen are called nitrogen fixers. अब देखिए जो प्रोसेस है जिसमें आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिसे, और इनको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सर्स। वी हैव लर्न दैट राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रोट nodules of leguminous plants like peas, beans, grams and pulses fix nitrogen. This means that rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites for use by plants. Some other nitrogen fixers are nitrosomonas bacteria, Nitrobacter, blue-green algae and fungi. The natural phenomenon of lightning also fixes nitrogen. The high temperature and pressure created during lightning converts atmospheric nitrogen into nitrogen oxides. These nitrogen oxides combine with rainwater to form nitric acid and reaches soil. These are then absorbed by plants from the soil. देखिए राइजोबियम जो बैक्टीरिया आपका जो रूट नोड्यूल्स में रहता है रेगुमिनस प्लांट्स में, उसका काम क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। इसके अलावा दूसरे आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हैं, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फंगी। आपका जो लाइटनिंग होता है ये आपका एक नेचुरल फिनोमेना है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। आपका हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है जब लाइटनिंग के दौरान क्रिएट होता है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन वाटर के साथ कंबाइन होके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं एंड देन सॉइल तक पहुंचते हैं और फिर प्लांट्स इसको सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं। Nitrogen cycle. We have learned about microorganisms that improve the fertility of soil by fixing nitrogen in it. There are two kinds of nitrogen, atmospheric nitrogen, which is a gas, and compounds of nitrogen which can be found in the soil. The conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds in the soil is called nitrogen fixation. Even though atmospheric nitrogen keeps getting fixed into the soil, the balance of nitrogen in the air remains the same. This happens because of the nitrogen cycle. The various steps involved in nitrogen cycle are, देखिए अभी पढ़ा हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो दो तरह के नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक जो कि आपकी गैस है, एंड कंपाउंड्स है नाइट्रोजन के जो आपके सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये जो कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में सॉइल में, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए आपकी ये जो प्रोसेस होता है आपका ये होता है नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल में। नंबर 1, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड into nitrogen compounds for use by plants. Nitrogen is also provided to soil by adding fertilizers. Nitrogen is also fixed during lightning. नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका प्रोसेस है, आप याद रखेंगे जब आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जिसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन इसके अलावा जैसे हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होता है और लाइटनिंग होती है तब भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। अमोनिफिकेशन,
It is the process by which microorganisms act on dead and decaying matter and produce ammonia. Ammonia is produced during breakdown of proteins and amino acids present in dead and decaying matter. अमोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीकेइंग मैटर पे एक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं. अमोनिया जब प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तब प्रोड्यूस होती है, जबकि डेड एंड डीकेइंग मैटर में प्रेजेंट होता है. नाइट्रिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. इस प्रोसेस में आपका जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में. डीनाइट्रिफिकेशन, it is the process in which bacteria act on nitrogen compounds present in the soil to break down into nitrogen and nitrogen oxides which are released to the atmosphere. The process of denitrification completes the nitrogen cycle. इस process में क्या होता है कि बैक्टीरिया एक्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो सॉइल में होते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, फिर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं. तो जो ये डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है इससे आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है वो आपका कंप्लीट हो जाता है. दिस इज योर नाइट्रोजन cycle. Learning outcomes. Microorganisms are present in soil, water, air, and even inside our body. Microorganisms are divided into bacteria, fungi, algae, protozoa, and viruses. Microorganisms help in fermentation and decomposition. Microorganisms are used in antibiotics and vaccines. Pathogens spread communicable diseases. Microorganisms spoil food and cause food poisoning. Foods can be preserved by different methods. Nitrogen cycle involves nitrogen fixation, ammonification, nitrification and denitrification. So children, आपने देखा किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हमारे लिए यूजफुल हैं जबकि हम कुछ हमारे लिए प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए हार्मफुल भी हैं. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आज इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.